हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी एंड वेलकम टू दिस आंसर राइटिंग सेशन जहां हम फोकस करने वाले हैं ऑन जीएस3 आंसर राइटिंग। एंड दिस सेशन इज नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन जीएस3 आंसर राइटिंग, एज आई हैव टोल्ड यू हम जीएस3 पर मेजर फोकस करने वाले हैं, बट द इम्पैक्ट it would have on entire GS 1, 2, 3, 4 answer writing is going to be humongous. So you're going to have the benefits of this session on other papers also. तो ये सबसे important है. It's focusing on GS3, but you can use this approach across the GS paper, and we'll have subsequent sessions में we'll have subject specific भी हम answer writing sessions करने वाले हैं. Before I tell you, before we start today's answer writing section, I would like to tell you whatever I tell you in this session have to be implemented in your test series, in your daily answer writing में ये implement करना बहुत ज़रूरी है. And as I've said earlier also, please watch the session till the end, because at the end I have a surprise for you through which your hard work is going to be simplified. We are going to help you with respect to certain things that would make your answer stand out. That would make your answer stand out, and you would have a edge in your answer writing. You would have an edge in your answer writing, right? Chalega. So this is important message before I start this important हमारा जो phase होने वाला है. First and most important is, most of the students what they do is they fear answer writing. They fear answer writing. I would like to tell you, answer writing can be the easiest part of the entire mains process if you follow the right process. सबसे important है remove the fear. Secondly, if you analyze, no one is a what do you say, innate ability नहीं है उनके पास कि वो बहुत अच्छे आंसर्स डे वन से लिख रहे हैं. Everyone evolves. तो एक important है, everyone starts from zero and they reach to a point. प्रॉब्लम क्या है आंसर राइटिंग में इज विथ रेस्पेक्ट टू, एक तो है कि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए एक तो है कि सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोसेस समझना पड़ेगा, या जो आपका स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छी से तरीके से आपको पता चाहिए कि एग्जैक्टली क्या करना है. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड हैव प्रोसेस, स्ट्रक्चर, नोट्स रेडी है, एंड उसके बाद आता है प्रैक्टिस. तो ये तीन चीजें करना बहुत जरूरी है. आई कैन टेल यू, अगर आपने स्ट्रक्चर आज सीख लिया एंड अगर आपके पास नोट्स है, एज वी हैव बीन डूइंग इट, आप कर ही रहे होंगे सेशंस के साथ नोट्स बनाना. अगर ये जो आज मैं सेशन सिखाऊंगा जहां मैं स्ट्रक्चरिंग एंड पूरा प्रोसेस सिखाऊंगा, अगर आपने ये सीख लिया एंड इसका सिर्फ प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिस दो तरीके से कर सकते हो, जो हम डेली क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें भी गो थ्रू द PYQs. उस बेसिस पर अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, आई कैन टेल यू आपका आंसर राइटिंग बहुत ईजी हो जाएगा. द एंटायर प्रोसेस वुड बी वेरी इजी. तो फर्स्ट इज रिमूव फियर. नो वन इज अ बॉर्न राइटर, नो वन नोज आंसर राइटिंग पहले से पता है. एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम zero, but what they do is they follow the right process and do it consistently. Okay, so this is the most important thing. Next important thing which I would like to tell you with respect to answer writing is, we have to have certain predefined templates. When I've been talking to all the toppers, I have noticed that they have made certain structure in their mind and they follow the same structure and they repeat on those things. तो हम वो structure पढ़ेंगे. Another important thing what I have learned is they have certain basic introduction and conclusion ready. One of the ready for answer writing. मैंने बहुत बार देखा है कि students they take a lot of time in introduction and they take a lot of time in conclusion. जिस वजह से what happens is the questions which they have to complete in 7 minutes goes up to 10 minutes. ठीक है, सो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ध्यान में रखना है. ये एक इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि two things what topper do differently with respect to answer is they have a specific template ready with respect to structuring, and second is they have certain predefined introduction and conclusions ready. Because if you don't have those things ready, what would happen is you'll not be able to start your answer and complete the introduction. मैंने देखा है कि इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोचते हैं, एंड जब आप बहुत ज्यादा सोच के लिखते हो तो क्या होता है, आप वही चीज रिपीट करते हो, वो इतना इफेक्टिव नहीं आता है. आपको ऑलमोस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस का इंट्रोडक्शन शुड बी इन योर ब्रेन. वो बहुत इनहेरेंटली आना चाहिए. तो ये एक चीज ध्यान में रखिए, टेम्पलेट्स एंड इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है. कमिंग बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, बिफोर यू अंडरस्टैंड एक्चुअली आंसर राइटिंग कैसे होता है, आपको कुछ चीजें पता चाहिए. जैसे मैं
एज आई ऑलवेज टेल यू इन द हमारे जो संकल्प मेंस बैच के सेशंस में हमेशा बोलता हूँ कि व्हाट यू हैव इज व्हाट यू हैव इज, अगर मैं बात करूं, यूपीएससी हमारे हमेशा हमारे पास क्या देता है, इट गिव्स यू अ क्वेश्चन. क्वेश्चंस में देयर आर 2-3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स. व्हाट यूजुअली यूपीएससी आस्क इज इंपॉर्टेंस क्या है, इश्यूज क्या है, मेजर्स क्या है, एंड समथिंग अराउंड दैट ऑल्सो. विल डिस्कस फ्यू पीवाईक्यूज ऑल्सो और आपको पता चलेगा. सो व्हाट हैपेंस इज, मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी सामने क्वेश्चंस दिखता है, व्हाट इज द यूजुअल टेंडेंसी जो हमारे ब्रेन में हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं, वी ट्राई टू आइडेंटिफाई 2-3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस, parts of the questions or demand of the question. The first thing what you do after seeing a question, you identify कि exactly UPSC में question क्या demand कर रहा है, UPSC question क्या, UPSC के question में क्या demand है. One of the major problem with respect to aspirants is what happens is sometimes they write 2 pages but they're not able to get good marks because they miss out on demand. Demand of the question, understanding the demand of the question is the most important thing. Most important thing. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इज ट्राई टू रीड द क्वेश्चंस फॉर 30 सेकंड एंड अंडरस्टैंड. वंस यू हैव गॉट द डिमांड, व्हाट हैपेंस इज, यू हैव कहीं पूछा है इंपॉर्टेंस, कहीं पूछा है इश्यूज, कहीं पूछा है मेजर्स, व्हाट हैपेंस इज यू आस्क योर ब्रेन फॉर द इंफॉर्मेशन. मुझे एक स्पेसिफिक टॉपिक पर इंपॉर्टेंस दो, या गिव मी डेटा पॉइंट्स और गिव मी इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू दैट टॉपिक. व्हाट योर ब्रेन डज इज इट ट्राइज टू थिंक it tries to filter out data, it tries to collect data from the stored data जो आपके मेमोरी में stored है, उसको filter out करता है, and it tries to give you certain thought, and that thought has to be put in your paper. अब the problem is if you आपके thoughts में सब कुछ है, लेकिन if it does not in your paper, what would happen is the examiner would think you do not know, no matter how good you are with respect to your thought process, you know all the points, but if it is not in a structured format, if it is not in your paper, what would happen is the examiner would not evaluate or he would not understand your brilliance or your intelligence. तो ये सबसे important part है. तो ये पूरा process समझना जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं. एक तो demand identify करके you have to question your brain and then you have to retrieve, that is known as brainstorming, जो हम कर रहे हैं. अब अल्टीमेटली पार्ट क्या आता है कि जो आपके पास दिमाग में कंटेंट आ रहा है या जो आपके नोट्स में कंटेंट है, उसका हाउ डू यू रिप्रेजेंट इट इन योर paper. That is actually what is answer writing. Answer writing is not just writing answers but understanding these 3 important processes. First is demand, next is brainstorming, and third is presenting it in a structure. The easiest part is this, presenting it in a structure. सबसे इजीएस्ट पार्ट क्या है, जो आपका नॉलेज है उसको आपको क्या है, एक स्ट्रक्चर में प्लेस करना है उसको. डिफिकल्ट क्या है, सबसे डिफिकल्ट क्या है, डिमांड आइडेंटिफाई करना एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग करना और टू रिट्राइव पॉइंट्स व्हिच वी हैव बीन डूइंग इन आवर सेशंस. तो आप कर ही रहे हो, लेकिन सबसे इजीएस्ट पार्ट इज पुटिंग दैट इंफॉर्मेशन इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर प्रोसेस. चलेगा. तो एक इंपॉर्टेंट है. अब कमिंग बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, यू हैव टू फोकस ऑन, मतलब व्हाट डू यू से, 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आंसर राइटिंग में, विच एवरीवन टेल्स यू. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आपका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए. सो दिस इज एन यूपीएससी का आंसर शीट है. इफ आई कंसिडर दिस इज एन यूपीएससी आंसर शीट, सो द क्वेश्चन वुड बी हियर. सो मैं पहले प्रेजेंटेशन पर बात करूंगा, देन आई विल टॉक अबाउट स्पेसिफिक थिंग्स. तो प्रेजेंटेशन में you have your question here, and I'm considering this as it's as a 15 marker question. Usually 15 marker question mein what happens is you have to write at least 10 to 15 points लिखने पड़ते हैं, and usually there are 3 body parts which are three things they have demanded. 3 चीजें उन्होंने डिमांड की है from your answers. Usually what should happen, ideally what should happen is, मैं ये आपका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, एंड जब हम इसका डिटेल में देखेंगे तो और देखेंगे, लेकिन आपका पेपर कैसे दिखना चाहिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है. व्हाट हैपेंस इज, आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, बहुत अच्छे पॉइंट्स है, लेकिन इफ इट डज नॉट in proper alignment, if it does not look properly, what happens is the examiner's interest is not there in your paper. He has thousands of paper to check. If you are not able to draw interest, or if you are not able to reduce his hard work, because he has to check a lot of paper, what you should do is you should reduce your hard work. You should reduce his hard work. You should simplify his work. How can you simplify the examiner's work? Is by ensuring that you
putting the structure, you're putting your answer in a very structured format so that he is able to find everything in a very crisp format. He is able to find everything in a very crisp format. ठीक है, यहां तक क्लियर है? गिव मी थम्स अप. यहां तक क्लियर है? चीजें जो मैं बता रहा हूं क्लियर है? ये पार्ट समझ आया? गिव मी थम्स अप सो दैट आई अंडरस्टैंड कि आपको हम जिस तरीके से जा रहे हैं एंड जैसे एंड तक यू विल हैव all the clarity. Give me thumbs up so that I know everyone is attentive and I want your attention for next 1 hour. After 1 hour you'll feel कि sir I can write answers. ठीक है, give me thumbs up so that I know that you are there active listening to the session, right? Because ठीक है why I'll be telling you is because आपका फिर से attention, I want your attention back, ठीक है, इन द सेशन, राइट? चलेगा. सो बेसिकली यहां अगर मैं देखूंगा, मैं बात करूं, यहां हमारा क्वेश्चन है. उस क्वेश्चन के बाद क्या आता है? यूजुअली व्हाट टॉपर्स डू इज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन, हमने दो चीजों से ही इनपुट्स लिए. वी हैव एनालाइज मल्टीपल GS3 के जितने भी टॉपर्स हैं जिनके हाईएस्ट नंबर्स आए. तो यहां मैं जो इनपुट्स दे रहा हूं, वी हैव एनालाइज एटलीस्ट 10 to 20 पेपर्स ऑफ टॉपर्स हु हैव स्कोर्ड more than 100 marks in GS3, and GS3 has become very difficult to score. लेकिन we have 100 plus, we have analyzed 20 plus copies from last 2-3 years who have scored more than 100 marks. So everything is with proof, and which I'll show in the later part also. So first is you have this question here. What I would suggest is आपका जो introduction होना चाहिए, introduction is the most important part. Introduction should be 2 to 3 lines, not more than 2 to 3 lines होना चाहिए. एंड इंट्रोडक्शन कैसे करना है लेटर पार्ट में आने वाला है. मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूं. इंट्रोडक्शन में कभी डायग्राम्स नहीं होगा, इंट्रोडक्शन में कभी फ्लो चार्ट्स नहीं रहेगा. मेक श्योर इट इज वेरी क्लियर. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टार्ट ही डायग्राम से स्टार्ट करेंगे. दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड. इंट्रोडक्शन हैज टू बी इन 2 to 3 लाइंस का पैराग्राफ मैक्सिमम. वो वन ऑफ द मिस्टेक्स विद इंट्रोडक्शन इज बहुत बड़ा हो जाता है. तो 2 to 3 लाइन मैक्सिमम होना चाहिए. किस तरीके के इंट्रोडक्शंस करना है वो आगे कवर होगा, लेकिन इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन. देन कम्स बॉडी पार्ट. अगर मैं क्वेश्चन, इफ आई हैव टू डिस्कस दिस क्वेश्चंस, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है. हियर दे हैव आस्क्ड व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन इरिगेशन सिस्टम इन रीसेंट टाइम्स. ठीक है, अब इसमें एंड सजेस्ट द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम. अब इसमें क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग इज यू आइडेंटिफाई डिमांड. डिमांड में क्या है, यू हैव चैलेंजेस एंड मेजर्स. तो बॉडी में क्या पूछा है, चैलेंजेस एंड मेजर्स. तो मैं यहां बॉडी कहां से करूंगा, मैं स्टार्ट यहां से करूंगा. बॉडी स्टार्ट, आई यूज अ डिफरेंट कलर टू टेल यू. बॉडी में व्हाट यू हैव टू डू इज, यहां चैलेंजेस पूछा है ना, चैलेंजेस. तो यहां क्या आएगा, मेरा हेडिंग आएगा challenges of Indian irrigation system. Challenges. The word exact, challenges faced by Indian irrigation system. I'll use the same statement which is used here. What I'll do is, I'll make a box. Challenges. Here what I'll do is, now I'll not write in this line. ये जो दो lines होते हैं, उसके इस side नहीं लिखूंगा. Here I'll write 1, 2, 3, 4, 5 or n number of challenges which I have. ठीक है. In between, what I can do is I can draw a small diagram here, just to tell the examiner कि what are the types of irrigation system in India. What you are trying to do is you are trying to tell the examiner that these are the types of irrigation, just an extra information. Or if you had certain flow charts or irrigation में what you can say is over the last few years हमारा irrigation system कितना बड़ा है. A small flow chart हो सकता है या फिर small bar graph just to show information which is aligned with the question. तो हमने क्या लिखा, challenges लिखे. उसके बाद आएगा simple आएगा क्या, challenges के बाद you have written challenges, then what are the measures. So again what you'll do is you'll draw a box and you'll write measures. अब इनडायरेक्टली यहां सिर्फ मेजर्स पूछे हैं, तो दो इंपॉर्टेंट पार्ट पूछे, लेकिन what you have to do is what more needs to be done has to be added. What more needs to be done, though it is not asked, though it is. So this is close to 15 marker question. लेकिन अगर ये 15 मार्कर है तो क्या होगा, मैं क्या लिखूंगा, अगर ये इमेजिन 10 मार्कर है तो मेरा मेजर्स देके कंक्लूजन आएगा. अगर यहां 15 मार्कर है एंड द क्वेश्चन इज सिमिलर, व्हाट आई विल डू इज व्हाट मोर नीड्स टू बी डन.
needs to be done. And last में आएगा conclusion, again 2 to 3 lines, 2 to 3 lines. This is conclusion. So this has to be a structure. यहां भी जब मैं measures लिखूंगा 1 2 3 4 1 2 3 4, नेक्स्ट टाइम से आपका आंसर शुड फील लाइक दिस ओनली. आपका आंसर इसी फॉर्मेट में दिखना चाहिए. अगर आपने इतना भी किया ना, आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, अब ये पॉइंट्स भी व्हाट शुड हैपन इज, दिखते समय इट शुड बी इन वन लाइन, इट शुड बी इन वन लाइन, इट शुड बी इन वन लाइन. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. आप जब भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं, मैं बॉडी में जब हम बॉडी डिस्कस करेंगे आई टेल यू एग्जैक्टली. अब हर एक पॉइंट हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, यू हैव दिस बॉडी पार्ट, एंड लास्ट में व्हाट यू हैव इज कंक्लूजन, व्हिच इज अगेन 2 to 3 lines, 2 to 3 lines. And what I can see is conclusion is one thing which could be, अगर आपने एक टॉपिक पर अच्छा कंक्लूजन लिख दिया, मतलब एक टॉपिक पर एटलीस्ट इफ यू आर रेडी विथ 1 or 2 कंक्लूजन्स, क्योंकि कंक्लूजन्स आर मोस्टली व्हाट, दे आर फ्यूचरिस्टिक. यू कैन हैव अ फिक्स कंक्लूजन फॉर अ टॉपिक. अगर इरिगेशन का क्वेश्चन है तो आई कैन हैव अ फिक्स 2-3 टाइप्स ऑफ कंक्लूजन. So if my conclusions are ready, what is the advantage I have? I do not have to think for conclusion because मेरे को पता है मेरे पास conclusion ready है. 2-3 टाइप के conclusion है, उसमें से एक मैं लिख सकता हूं. क्योंकि conclusion is always what? It is futuristic. It is trying to solve the problem. It is having certain recommendation, committee's recommendation, or it can have certain famous personalities name. ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. चलेगा. सो यहां तक क्लियर है. स्ट्रक्चरिंग ये इज क्लियर कि आपका आंसर इसी फॉर्मेट में दिखना चाहिए, इसी फॉर्मेट में. एंड आई विल शो विद प्रूफ आल्सो. जब हम आगे देखेंगे ना, ये दिस इज बेस्ड ऑन ऑल द टॉपर्स कॉपीज से यही स्ट्रक्चर है. अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, बॉडी का पार्ट में जब बताऊंगा, ये उसका पेज है, दिस इज द कॉपी, दे हैव दिस इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन का. वो बॉडी में क्या कर रहे हैं, कभी कोई क्या कर रहा है, ऐसे पॉइंट्स लिखना. ठीक है. मेजर्स या व्हाट डू से इश्यूज है, तो इस तरीके से पॉइंट्स लिख रहा है. बट इवेंचुअली क्या कर रहा है, क्यों लिख रहे हैं इस फॉर्मेट में इसलिए लिख रहे हैं कि अगर क्या हो रहा है, इससे थोड़ा सा मोनोटोनी ब्रेक हो रही है. द एग्जामिनर सेम पॉइंट्स है, यहां मैंने क्या लिखा है, इश्यूज लिखा है. And what is 1 2 3 4 5 6? This helps. ये लास्ट फेज है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, लेकिन जस्ट टू ब्रेक दैट मोनोटोनी ये हो सकता है. अगेन what some students do is वो बॉडी के पार्ट्स को, ये सब बॉडी में हो सकता है, ये मैं बॉडी का बता रहा हूं, ये इंट्रोडक्शन हो गया. बॉडी में what they do is वो इस तरीके से लिखेंगे. एंड ठीक, ये मैं रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं. ठीक, ये इस फॉर्मेट में करते हैं, लेकिन द आइडियल पार्ट इज व्हाट आई कंसीडर इज, आप इस तरीके से करोगे तो इट्स मोर देन एनफ. इस तरीके से करोगे तो मोर देन एनफ. चलेगा. सो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस कैसे आइडेंटिफाई होंगे. डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस के लिए व्हाट यू डू इज यू हैव टू स्टडी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. पीवाईक्यूज देखो. जैसे ये सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्ट विद सिंपल क्वेश्चंस. क्योंकि क्या होगा, स्लोली वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज, एक तो है डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस अंडरस्टैंड करना, एंड एग्जैक्टली क्या लिखना है. ये दो इंपॉर्टेंट है. पहले तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एग्जैक्टली बीन आस्क्ड. तो यहां तो सिंपल क्वेश्चन है व्हिच कैन बी इजीली अंडरस्टूड. तो यहां दो चीजें पूछी है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस एंड स्टेट द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर एफिशिएंट. अब 15 मार्क है तो मैं क्या करूंगा, और क्या कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड भी ऐड करूंगा, बिकॉज दो चीजें पूछी है बट आई हैव टू ऐड 15 पॉइंट्स. सो आई विल बी एडिंग दैट पॉइंट आल्सो. अगर ठीक है, यहां अगर आप देखोगे, elucidate the importance of buffer stock for stabilizing agriculture price in India. What are the challenges associated? ठीक. यहां भी आपको एटलीस्ट बॉडी का पार्ट्स इंट्रोडक्शन है, एंड देन बॉडी में क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बफर स्टॉक इन स्टेबलाइजिंग प्राइसेस, stabilizing agriculture prices. And second part क्या है, challenges associated with storage. Similarly, what happens is usually यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ discuss बात की है. So there are certain tail words which are there. I'll try to tell you the certain definitions or certain मतलब what does this tail word means. मैं आपको थोड़ा सा brief में बताना चाहता हूँ. दो tail words are important, but
at the end what you do is you write things according to the body part. मैं आपको बताऊंगा, तो यहां डिस्कस चीजें पूछी है, ठीक है, ठीक है। अब टेल वर्ड्स का इंपॉर्टेंस है आपके आंसर राइटिंग में, लेकिन एट द एंड व्हाट यू विल बी राइटिंग इज यू विल बी राइटिंग एवरीथिंग। टेल वर्ड्स का इंपॉर्टेंस है। टेल वर्ड्स में अगर मैं आगे बताऊंगा तो व्हाट यू विल फील इज टेल वर्ड्स इज इंपॉर्टेंट, एक दो जगह स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस बच जाता है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे, अगर 15 मार्क का क्वेश्चन है तो यू हैव टू राइट एवरीथिंग। अगर पूछा भी नहीं है तो वन थिंग हैज टू बी एडेड टू कंप्लीट द आंसर, ठीक है। टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर क्वेश्चन आता है कमेंट, तो यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कमेंट है तो यूजुअली ये नैरो पर्सपेक्टिव से पूछा गया क्वेश्चन है, नैरो पर्सपेक्टिव से पूछा गया क्वेश्चन है। यहां आपका ओपिनियन देना है विथ रीजनिंग, यहां आपका ओपिनियन देना है विथ रीजनिंग। तो क्वेश्चन आ सकता है, इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड इज अंडर यूटिलाइज्ड, कमेंट, ठीक है। अब व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू, अगर आप इसका ओपिनियन क्या है, डू यू थिंक इट इज अंडर यूटिलाइज्ड? इफ यस, आपको पॉइंट्स के साथ क्या करना है, आपको रीजनिंग देना है, यस व्हाई इट इज अंडर यूटिलाइज्ड। एंड जब भी आप पॉइंट्स दे रहे हो, बता रहे हो अंडर यूटिलाइज है, उसके पीछे आपको डेटा देना है या उसको सपोर्ट करना है। Why are you saying specific things? लेकिन अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन है, would you not give what more needs to be done? और आपको काउंटर भी देना है, ठीक है। आप बोल रहे हो कि अंडर यूटिलाइज है, लेकिन आपको ऑन द अदर हैंड आपको बोलना है गवर्नमेंट आर टेकिंग स्पेसिफिक मेजर्स लाइक 1 2 3 4 एंड देन कंक्लूजन। दो यू आर what you are doing, you are putting your viewpoint, but you are putting it with a reason. तो कमेंट में हमेशा रीजन देना है। if you are taking any specific thing, you have to put reason why it is underutilized, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इज कमेंट्स में मेजरली what you need to do is you have to support the statement or you can go against also, but you have to give data points, you have to give reasons for that. एंड सेकेंड पार्ट में 2 ईयर अगर आप देखोगे, ये पूछा नहीं है, बट गवर्नमेंट क्या ले रहा है, गवर्नमेंट स्किल इंडिया कर रहा है, गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, तो दैट हैज टू बी रिटन, तो एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट आता है डिस्कस। तो डिस्कस जब पूछा जाता है तो यहां होलिस्टिकली टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है। अब होलिस्टिकली डिस्कस मतलब क्या, चैलेंजेस, अगर यहां देखोगे, डिस्कस द रोल ऑफ एमएसएमई इन बूस्टिंग इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया, तो यहां इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंक्लूसिव ग्रोथ आप लिख सकते हो, लेकिन साइड बाय साइड आपको चैलेंजेस, रिफॉर्म्स एंड वे फॉरवर्ड मल्टी डायमेंशनली कवर करना है। डिस्कस में व्हाट यू डू इज यू कवर द टॉपिक होलिस्टिकली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। डिस्कस बोला तो यू हैव टू कवर होलिस्टिकली, क्रिटिकली एनालाइज बोला तो क्या होना है, आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों देखना है, पॉजिटिव आउटकम एंड नेगेटिव आउटकम, एंड देन यू हैव टू put forward what government is saying or what more needs to be done in the form of way forward, ठीक है। तो अगर यहां देखोगे, क्रिटिकल एनालाइज द सक्सेस ऑफ मनरेगा इन एम्पावरिंग रूरल वुमेन, ठीक है। उसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। लास्ट में आता है एग्जामिन में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यहां अगेन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो, मतलब आपको एकदम डिटेल में एनालिसिस देना जरूरी है, डिटेल में, एंड अगेन सपोर्टेड विद डेटा पॉइंट्स, ठीक है। एंड जब डिटेल में एनालिसिस है तो आपको सिर्फ व्हाई आर, मतलब व्हाट आर द कॉजेस और व्हाई फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज लेस, ये तो बताना है, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है ये भी ऐड करना। You have to analyze, you have to examine the whole concept in a detailed format. तो अगर आप नोटिस करोगे, these tail words are important, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ द क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जा रहा है, you have to write everything indirectly। जो मेन चीज है यहां अगर आप देखोगे, यहां तो कॉज पूछा है, लेकिन एग्जामिन में अगर सिर्फ कॉजेस पर से आप 15 मार्क्स नहीं लिख सकते ना, आपको इंपैक्ट भी लिखना पड़ेगा एंड गवर्नमेंट मेजर्स भी लिखने पड़ेंगे,
ठीक है. सो दिस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स विच यू शुड नो. ठीक है. तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ कमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विच वेयर यू हैव टू गिव योर ओपिनियन विद रीजन. यू हैव टू गिव योर ओपिनियन विद रीजन एंड रेस्ट क्रिटिकली एनालाइज पॉजिटिव नेगेटिव. वेयर एज डिस्कस एंड अगर हम एग्जामिन की बात करें तो दोनों जगह कॉम्प्रिहेंसिवली चीजों को डिस्कस करना है, कॉम्प्रिहेंसिवली सारे एस्पेक्ट डिस्कस करना है. जैसे कॉजेस क्या हो गया, इंपैक्ट्स क्या है, एंड what government measures are taking. तो ये डिफरेंस आपको जानना जरूरी है. लेकिन अगर देखेंगे डिस्कस जहां भी आता है या एग्जामिन जहां आता है, तो यू हैव टू अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस जो भी पूछा गया है, उसके अलावा भी आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना है. डिस्कस कर रहे हैं तो मतलब क्या है, आप पूरे एस्पेक्ट से डिस्कस कर रहे हो, या एग्जामिन कर रहे हो तो सारे एस्पेक्ट से उसको एग्जामिन करो. ठीक है. ठीक है. तो आई होप थिंग्स आर क्लियर हियर, थिंग्स आर क्लियर. लेकिन जब भी ट्राई करो, आप पहला फोकस किस पर चाहिए. अगर मैं ये क्वेश्चन करूं, ये बात करूं, अगर इफ दिस इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन, if this is a 10 marker question, I'll just focus on this thing, importance of buffer stock, and second is challenges associated. If it is 10 marker, लेकिन अगर 15 marker है, here I'll try to suggest measures which the government is taking, because discuss पूछा, and discuss वाले question majorly if you have analyzed 15 markers होते हैं. तो this is important. तो discuss and examiner, you have to go one step ahead. Apart from the two things they have asked, आपको एक extra holistically वो point discuss करना होता है. ठीक है. क्लियर है, चीजें क्लियर है. ठीक है. गिव मी थम्स अप सो दैट आई अंडरस्टैंड कि यहां तक चीजें क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर है. राइट. ठीक है. राइट. तो डिस्कस एंड एग्जामिन में यू हैव टू कवर द टॉपिक्स होलिस्टिकली. कमेंट में आपके जो भी व्यू पॉइंट्स है अबाउट दैट टॉपिक, यू हैव टू सपोर्ट विद डेटा फैक्ट्स. यू हैव टू सपोर्ट विद डेटा फैक्ट्स. एंड लास्ट इज, अगर पूछा गया है क्रिटिकली एनालाइज, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों बताना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड देन गिव अ बैलेंस्ड कंक्लूजन. मनरेगा में बैलेंस कंक्लूजन व्हाट होगा, दैट मनरेगा हैज एंश्योर्ड मिनिमम बेसिक इनकम in rural area, but we have to focus. Manrega has given right based it has solved the problem of inclusive growth through right based approach, but we have to move towards capability based approach, where we can skill the Manrega workers also. सो आपने बैलेंस दे दिया है. तो आपने एक साइड बोल दिया कि यस ये टेम्पररी राइट बेस्ड सोल्यूशन है फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, बट परमानेंट सोल्यूशन क्या होगा, स्किल्ड बेस्ड अप्रोच और कैपेबिलिटी अप्रोच, विच कैन बी सपोर्टेड बाय प्रोवाइडिंग देम ट्रेनिंग. ठीक है. क्लियर. अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंट्रोडक्शन of your answer. अब introduction में is the most important part, introduction of your answer. Why introduction is the most important part is, introduction would, if your introduction, if introduction is boring, he would not read your body, which is the most important part. अगर मैं बात करूं 10 marks का question है, उसमें से 7 marks is for body, or I would consider 7 marks, and remaining 30% of your marks is for your introduction and conclusion. तो 70-30 का डिवीजन है. 30 is for introduction conclusion and 70 is for your body. But this जो 30 पार्ट्स है, इंट्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है पता है? इंट्रोडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट कैन हुक द एग्जामिनर टुवर्ड्स बॉडी. अगर मेजर प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू इंट्रोडक्शन क्या है पता है? व्हाट स्टूडेंट डू इज दे जस्ट रिपीट द क्वेश्चन. What I have seen is most of the student what they do is they just repeat the question, and here is the major problem with respect to why the examiner is not reading your body. दो आपने बॉडी में सारे सही पॉइंट्स लिखे, लेकिन आपका इंट्रोडक्शन इतना बोरिंग हो जाता है, आपने सिर्फ फिर से वही चीज लिखी है, that pushes the examiner or evaluator to not read your body. तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? Your introduction should be attractive and effective.
अट्रैक्टिव एंड दोनों इफेक्टिव, दोनों चाहिए. Attractive in the sense it should have certain things that would force the examiner to read your body. If it is plain bland, you will get average marks, or he'll not read, he'll just give, क्योंकि उसे thousands of copies check करना है, नहीं करेगा. आपको effective भी चाहिए. Effective is it should address the demand of the question. वो question के हिसाब से आप randomly कुछ randomly मतलब at least your introduction should align with the demand of the question. ऐसा नहीं कि it is completely, लेकिन A पूछा है और B का इंट्रोडक्शन लिखा है तो नहीं होगा. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में इट हैज टू बी अट्रैक्टिव प्लस इफेक्टिव. अट्रैक्टिव व्हेन योर इंट्रोडक्शन कुड बी अट्रैक्टिव. अब मोस्ट ऑफ द टॉपर्स व्हाट दे आर डूइंग इज हियर, मैं आई अगेन स्टार्ट विद द प्रूफ, इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन व्हाट टॉपर्स डू स्पेशली विद GS3 इज they focus on data based introduction, and this has been followed by many toppers. अगर मैं मुदिता बंसल की बात करूं, he scored 108 in GS3 and rank 44. Data points, she used almost most of the questions में introduction was linked to data points. अब important क्या है, जब भी आप data points introduction में लिख रहे हो, it should directly address to the demand of the question. ठीक है. And second important is whenever she used to give data points, it has to be supported with source. तो introduction में if you're writing data points, it has to be supported with source. ठीक है. जब इरिगेशन का क्वेश्चन है तो यहां आप इकोनॉमिक सर्वे का भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, हाउ मच परसेंट ऑफ आर टोटल लैंड इज अंडर इरिगेशन बोल सकते हो. यू कैन से ऑलमोस्ट 50% of our irrigated land is under irrigation. According to economic survey. तो यहां the most important part is if you have lots of data, जो भी importance में मैंने data points दिए हैं, those data points could be utilized in a positive form. Can be utilized in a positive format. तो इंट्रोडक्शन में डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन इज बीन वाइडली यूज्ड. अगर ये विभोर की कॉपी देखोगे, हियर आल्सो इज बीन यूजिंग डेटा पॉइंट्स. बहुत सारे टॉपिक्स अगेन मैं बताऊंगा. इंडिया रैंक 10th इन रोबोटिक कंट्रीब्यूशन ग्लोबली. तो यहां डेटा पॉइंट्स एक हो सकता है. एंड सेकंड थिंग व्हाट यू कैन यूज इज यू कैन यूज रिपोर्ट्स आल्सो. अगर मैं पॉवर्टी की बात करूं तो मैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात कर सकता हूं. तो इंपॉर्टेंट है, डेटा पॉइंट इज अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट इंट्रोडक्शन. डेटा पॉइंट इज वेरी गुड वे ऑफ स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन. सेकंड, मतलब यहां भी अगर आप देखोगे विबोर का कॉपी है वेयर हिज एडेड डेटा पॉइंट्स ऑन रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, अगेन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर अगर डेटा पॉइंट है तो ये इंपॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम डेटा पॉइंट, व्हाट यू कैन डू इज डेटा पॉइंट के साथ अगेन मैं आदित्य श्रीवास्तव का भी कॉपी दिखाऊंगा. तो यहां भी डेटा पॉइंट्स अगर आप देखोगे, 4 बिलियन एक्सपोर्ट हो रहा है, $4 बिलियन का हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है. तो उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर क्वेश्चन था, तो ही हैज अ डेटा पॉइंट्स. आदित्य विक्रम, तो यहां भी अगर देखोगे WHO एंड 7 मिलियन पीपल. अगेन आदित्य श्रीवास्तव अगर अनएम्प्लॉयमेंट पर देता है तो CMIE का डेटा पॉइंट्स दिया. अगेन आदित्य श्रीवास्तव कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट हमारा साइंस एंड टेक का व्हाट डू यू से कितना कंट्रीब्यूट करता है स्पेस सेक्टर. ठीक है, तो ये एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है. ये दिस इज बीन फ्रीक्वेंटली यूज्ड. तो मेक श्योर यू शुड हैव डेटा पॉइंट्स फॉर इंट्रोडक्शन. जो भी इंपॉर्टेंस आप जब भी लिखते हो कि अगर मैं कंट्रीब्यूशन टू द GDP, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना करता है स्पेसिफिक सेक्टर, या इट कुड बी विथ रिस्पेक्ट टू कितना एक्सपोर्ट है, कितना एक्सपोर्ट्स हो रहा है. तो जितने भी पॉइंट्स, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो कितना परसेंट ट्रांसपोर्टेशन उससे हो रहा है. तो डेटा पॉइंट सपोर्टेड विथ सोर्स. अब सोर्स समटाइम्स यू कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग. व्हाट ऑल द टॉपर्स डू इज, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज वो लॉजिकल ब्लफिंग करते हैं. लॉजिकल ब्लफिंग इज व्हाट, अगर इकोनॉमी का है तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे लिख देंगे. पॉवर्टी है या ग्लोबल लेवल की कुछ इकोनॉमी की बात करें तो IMF एंड वर्ल्ड बैंक लिख देंगे. दिस हैज बीन लॉजिकली डन.
Ideally you should remember, but if you do not remember, you can use such techniques, you can use, but your data point should be close enough. Because अगर हम बात करें, World Bank releases 10 reports in a year. If you analyze ministries and Government of India report, they release hundreds of reports. Niti Aayog releases hundreds of reports, and they are what do you say? Their members have spoken at multiple places and they've given multiple data. So logically you could be correct, आपका data points clear होना चाहिए. So this is an important thing. This is of last resort. जब आपको लिखना है source लेकिन आपको पता नहीं, आपको data points पता है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट या फिर अगर जीडीपी ग्रोथ मैं बताऊंगा जीडीपी ग्रोथ कितना है, तो यहाँ what you can do is either you can write MOSPI or World Bank. MOSPI या World Bank या IMF, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है. So this is one of the important part. Second way of introduction is with respect to definition based introduction. Definition में ideally what I would consider is definition could be the last resort. If you do not get immediately, आपको ध्यान में नहीं आ रहा है कि क्या लिखना है, तो definition could be one. लेकिन जब भी definition लिख रहे हो, अगर आपको definition could also be the first way of introduction, अगर आपके पास source पता है, अगर आप बोल रहे हो कि OECD बोल रहा है ये definition है, अगर आपको पता है कि हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट का डेफिनेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या दिया, सो इफ यू आर एबल टू सपोर्ट योर definition by a specific institution, that is also a very good start. That is also a very good start. And here also what I've seen is बहुत सारे students क्या करते हैं, मतलब definition is being used जब कोई technical term है ना, then technical term जैसे टेक्निकल टर्म जैसे हो गया प्रिसीजन एग्रीकल्चर, यहां मेजरली डेफिनेशन वुड वर्क. टेक्निकल टर्म है विच यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, तो वहां डेफिनेशन वर्क्स वेरी वेल. फिस्कल डेफिसिट इज ऑल्सो, अगर आप देखोगे यहां जब उसको फिस्कल डेफिसिट, आइडियली फिस्कल डेफिसिट का यहां बजट वाला इंट्रोडक्शन चाहिए. अकॉर्डिंग टू बजट दिस मच इज द फिस्कल डेफिसिट and finance ministry has agreed to reduce it by 22. तो ideally यहाँ budget का budget source should be, and there should be a data point that would be an ideal. ठीक है. यहाँ अगर आप देख रहे हो, यहाँ introduction में he has added definition and has also tried to add data. So and उसके साथ source भी दिया. तो majorly अगर आप definition छोटा है उसके साथ data points भी आप add कर सकते हो. Third important thing is, third way of introduction is by current affairs is अगर you know कि why that specific question is been asked. अगर आपको पता है कि गगनयान पर question है, तो you can recently start with the गगनयान project which the government has started, या human based space project है तो आप गगनयान से start कर सकते हो. So if you have a specific reason why मतलब आपको पता है कि अगर ये क्वेश्चन यूपीएससी ने ये चीज ध्यान में रख के पूछी है, तो दैट हैज टू बी देयर इन योर इंट्रोडक्शन. ठीक है. तो अगेन नेशनल फार्मिंग पर क्वेश्चन है, तो हु इंट्रोड्यूस्ड एंड व्हाई इट वाज इन न्यूज, ये भी आपको पता है. ये भी एक इंपॉर्टेंट वे है. लास्ट वे इज विद रिस्पेक्ट टू कीवर्ड्स से आप स्टार्ट कर सकते हो या पावरफुल फ्रेजेस से स्टार्ट कर सकते हो. कीवर्ड्स एंड पावरफुल फ्रेजेस, जहां ब्लू इकोनॉमी हो गया, या व्हाट यू डू इज फार्म टू फोक हो गया. एंड अगर आप अगर कोई स्पेसिफिक एक्ट या अमेंडमेंट से कर रहे हो, तो ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स या फ्रेजेस से आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो, विच द टॉपर्स हैव बीन डूइंग. तो इंपॉर्टेंट क्या है, द बेस्ट वे टू स्टार्ट इज इफ यू हैव एनी डेटा पॉइंट्स. इसलिए आई हैव बीन टेलिंग यू सो मेनी डेटा पॉइंट्स इन द सेशन. ठीक है. सेकेंड इज विद डेफिनेशंस विच इज सपोर्टेड विद एनी ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड इंपॉर्टेंट इज कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस. Fourth is current affairs. Data में, if it is supported by any report is also a very good way of starting a introduction. Report is also a very good way of starting an introduction. ठीक है. Things are clear on this. Give me thumbs up. Introduction clear है. Introduction, would you write the same thing? आपका aim होना चाहिए how do you. ठीक है. अगेन अनदर वे ऑफ इंट्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं इज
जो आप ऐड कर सकते हो कोड बेस्ड, कोड बेस्ड, वेर यू कैन ऐड कोट्स ऑफ फेमस पर्सनैलिटी जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैज सेड at multiple times that, या फाइनेंस मिनिस्टर हैज आल्सो सेड सिमिलर थिंग्स, इज MSMEs आर द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। ठीक है, अब MSME पर भी क्वेश्चन है तो आप की फ्रेज से भी स्टार्ट कर सकते हो कि कॉम्पिटिटिव MSMEs would make India competitive, would result in competitive India। तो competitive MSMEs would make India, would result in competitive India, thus increasing exports। तो you have added two phrases, competitive MSMEs, competitive India। ठीक, राइट राइट, ठीक है। तो यहां बॉडी पार्ट इज सॉरी, यहां इंट्रोडक्शन इज, मतलब ये आपको करना है। कमिंग बैक टू द बॉडी पार्ट, बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट एज आई हैव टोल्ड यू, बॉडी में फर्स्ट पार्ट इज आपको हाईलाइट करना है कि आप बॉडी में क्या लिखने वाले हो। जैसे मैंने बताया आपको बॉक्स बना के लिखना है, अगर यहाँ चैलेंजेस पूछा है तो चैलेंजेस एंड बॉक्स बनाना है। सेकेंड, इट हैज टू बी इन पॉइंट फॉर्मेट। थर्ड, पॉइंट कैन नॉट बी मोर देन 2 to 3 लाइन्स, नहीं इतना नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 2 लाइन्स। यू नीड नॉट फोकस ऑन ग्रामर, यू नीड टू फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। सेकंड, अगर मैं कोई पॉइंट लिख रहा हूँ 2 लाइन्स का, ये मेरा पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट, यहाँ जो भी मेरा पॉइंट है उसको मैं क्या करूंगा, हाईलाइट करूंगा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को। ये 2 लाइन से बड़ा पॉइंट ही नहीं होना चाहिए। क्लियर है, आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन द लेंथ ऑफ 1 पॉइंट। अगर आपको 10 मार्क का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 10 पॉइंट्स, एंड 15 मार्क्स का है तो एटलीस्ट 13 to 15 पॉइंट्स आने ही चाहिए, आने चाहिए। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं यहां भी एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा यहाँ रीजन फॉर ओशन एसिडिफिकेशन पूछा है। सो दिस एज आई हैव टोल्ड यू कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन डू नॉट ट्राई दिस फ्रॉम डे 1। फोकस reasons for ocean acidification and write 1 2 3 4 5, and important, what I've seen is why toppers get more point compared to other students is, अब students have become very smart। अब वो एवरेज पहले लिखते थे तो अच्छे नंबर आते थे, आज एवरेज लिख रहे हो तो बिलो एवरेज मार्क्स मिल रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि टॉपर्स क्या लिख रहे हैं, दे आर नॉट जस्ट राइटिंग पॉइंट्स, दे वुड नॉट जस्ट से कि व्हाट आर द रीजंस फॉर नॉन इंक्लूसिव ग्रोथ, so they would not just say inequality, they would support it with data points of Oxfam report। they would also write about multidimensional poverty। so support के साथ क्या है, आप inequality, poverty या unemployment ज्यादा है तो they'll write CMEI। तो they would support their point with data and the source also, data and source। अगर आप यहाँ देख रहे हो तो यहाँ भी 300 days 30 days, यहाँ भी सोर्स दिया जहां जहां से पॉसिबल। ऐसे नहीं कि हर एक पॉइंट में आएगा, लेकिन अगर 5 पॉइंट लिख रहे हो उसमें से 2 पॉइंट में भी आप डेटा और सोर्स लिख रहे हो तो एग्जामिनर वो थिंग। यहाँ भी देखोगे इंडिया 75% ट्रेड थ्रू पोर्ट्स। एग्जाम्पल, तो डेटा एग्जाम्पल्स आपके पॉइंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। यू कैन नॉट जस्ट राइट ब्लैंड पॉइंट्स, यू हैव टू सपोर्ट इट विद पॉइंट्स। ठीक है, अगेन मैं यहां बात करूं तो यहां भी सेम फॉर्मेट यूज किया है। अगर मैं ये बात करूं तो आपको इससे क्लियर है, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हाई फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, हाई फिस्कल डेफिसिट क्या है, वी हैव लो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है, अब यहां भी क्या हो सकता है कि कितना टैक्स कलेक्शन है आप बोल सकते हो, या रेवेन्यू फॉरगॉन कितना है, रेवेन्यू फॉरगॉन बोल सकते हो कि इतना एक्स अमाउंट है, 8.6 लाख करोड़ पिछले 4 सालों में इतना ये है। अगर हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो यहाँ क्या एग्जांपल, पेंशन एंड डिफेंस सैलरीज है। ठीक है, यहाँ लो टैक्स बेस है तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, लो टैक्स बेस है तो कितना बोल सकता हूँ कि ऑलमोस्ट हमारे पास 10 करोड़ पीपल है हु आर पार्ट ऑफ टैक्स बेस। ITR कितने लोग बचते हैं, 8 करोड़, उसमें से ऑलमोस्ट 60% जीरो इनकम टैक्स भरते हैं, तो लो टैक्स बेस। तो आई कैन ऐड दैट डेटा। So you cannot just write low tax base, you have to support it with data points। जहां जहां possible है write data points to support your answer। यहां भी अगर मैं देखूंगा तो
अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ बॉक्स क्या है, एंड सिंपल 2 लाइन से बड़ा पॉइंट है नहीं, 1 या 1.5 लाइन मैक्सिमम, कोई ग्रामर नहीं है। एंड देखोगे इंपॉर्टेंट क्या है, हाईलाइट किस पर किया है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर क्या किया है, मार्क किया है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये भी अगर मैं इसकी कॉपी की बात करूं आदित्य श्रीवास्तव की, यहाँ भी अगर देखो कंपोनेंट ऑफ नेचुरल फार्मिंग पॉइंट लिख दिया, ठीक है। यहाँ भी पॉइंट्स देख रहे हो, नॉट मोर देन 3 लाइन्स। एंड पॉइंट्स में भी अगर पॉइंट्स देख रहे हो कि यहाँ सपोर्टेड विद डेटा एंड सोर्स, तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, तो प्रीलिम्स के जितने भी पॉइंट्स है दे आर यूजिंग इट इन मेंस आल्सो, दे आर यूजिंग इट इन मेंस आल्सो, ठीक है। अगेन यहाँ भी देखोगे स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग डेवलपमेंट, यहाँ भी देखोगे 2 लाइन के पॉइंट एंड हाईलाइटेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाईलाइटेड यहाँ भी हाईलाइटेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हाईलाइट किया, डेटा दिया, एग्जाम्पल दिया, यहाँ सोर्स भी दे दिया। तो ट्राई करो अगर आप 6 पॉइंट लिख रहे हो किसी स्पेसिफिक में, एटलीस्ट 2 से 3 पॉइंट में डेटा और सोर्स दे दो, ठीक है। सारे इसमें दोगे तो बहुत ही अच्छा, लेकिन एटलीस्ट 2 to 3 टू टेल द एग्जामिनर, ठीक है। यहां भी देख रहे हो सेम चीज क्या है, सेम 1 2 3 4 कितना सिस्टमैटिक है। हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन सिस्टमैटिकनेस, ज्यादा बड़े पॉइंट्स नहीं, सिंपल 1 से 1.5 लाइन का बस मैक्सिमम। क्लियर, बॉडी पार्ट क्लियर, ठीक है। ठीक है, अब बॉडी पार्ट में मेजरली यूपीएससी क्या पूछता है, इश्यूज चैलेंजेस पूछता है, इश्यूज चैलेंजेस पूछता है। सो हियर व्हाट आई कंसिडर इज, एक्चुअली पॉइंट्स आपको पता चाहिए, लेकिन समटाइम्स व्हाट यू हैव इज इन द, इफ यू डू नॉट हैव, आपको पता है 6 पॉइंट लिखने, आपके पास 4 ही 5 ही पॉइंट आ रहे हैं, आपके पास कुछ बेसिक पॉइंट चाहिए, सर्टन बेस पॉइंट्स, ठीक है। एक्चुअली इरिगेशन के पास 7-8 पॉइंट्स है, लेकिन उसके ऊपर क्या चाहिए, अगर मतलब आपके पास 5-6 पॉइंट है और आपको 1-2 पॉइंट और लिखने हैं, तो यूजुअली व्हाट यू शुड हैव इज, यू शुड हैव सर्टन जैसे पेस्टल बोलते थे, पॉलिटिकल इश्यूज, सोशल इश्यूज, लेकिन इकोनॉमी के लिए अगर मैं बात करूं तो व्हाट यू कैन थिंक, अगर मैं जनरल इकोनॉमी की बात करूं, इकोनॉमी पर कोई क्वेश्चन है, अगर इकोनॉमी पर क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी पर, या फिर इन्फ्लेशन पर क्वेश्चन है, या फिर मतलब इस जनरल इकोनॉमी रिलेटेड इश्यूज है ना, आपको इश्यूज नहीं आ रहे हैं, मतलब यू नो स्पेसिफिक इश्यूज, आपको 3-4 इश्यूज है, इफ यू हैव टू ऐड पॉइंट्स देयर, यू कैन यूज सर्टन पॉइंट्स, जैसे स्ट्रक्चरल इश्यूज है, यू कैन यूज सर्टन पॉइंट्स। स्ट्रक्चरल इश्यूज जब भी कोई, अगर मैं मतलब स्ट्रक्चरल की बात करूं कि द कोर पार्ट में इशू है, द फाउंडेशन में पार्ट में इश्यूज है, या अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं, इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी, तो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी इज द स्ट्रक्चरल इश्यूज है, हमारे स्ट्रक्चरल इशू का पार्ट। नेक्स्ट आता है, उसके बाद आता है इंस्टीट्यूशनल इश्यूज। आप इस तरीके से सोच सकते हो कि इंस्टीट्यूशनल क्या इश्यूज है। देन यू कैन हैव सिस्टमिक इश्यूज मतलब हमारे जो रिफॉर्म्स है या रेगुलेशन में क्या इश्यूज है, रेगुलेशन या ब्यूरोक्रेटिक क्या इश्यूज है, इसको हम सिस्टमिक इश्यूज बोलेंगे, सिस्टमिक इश्यूज। तो इस फॉर्मेट में आप पॉइंट्स लिख सकते हो, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज क्या है, ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज क्या है। तो दीज पॉइंट्स वुड हेल्प यू, मतलब आपको याद आने में ये पॉइंट्स हेल्पफुल होंगे, ठीक है। सोशल इश्यूज हो गया या बिहेवियरल इश्यूज हो गया, सो सर्टेन पॉइंट्स you should have certain points ready, अगर आपके जो कोर पॉइंट्स है, इसके अलावा आपको 3-4 एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना है, देयर कुड बी फाइनेंशियल इश्यूज और देयर कुड बी टेक्नोलॉजिकल इश्यूज। सो अगर आपने 10 पॉइंट ऐसे याद रखे तो हमेशा क्या होगा, आपने कोर पॉइंट 7-8 पॉइंट सोचे, उसके बाद आपको 2-3 पॉइंट ऐड करने हैं, यू कैन जस्ट थिंक क्या स्ट्रक्चरल कुछ इशू है, इंस्टीट्यूशनल कुछ इशू है, सिस्टमिक इश्यूज है, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल ऐसे कुछ इश्यूज है कि नहीं, ये दैट वुड हेल्प यू गेट दोस पॉइंट्स। चैलेंजेस में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पता चाहिए जब भी आप आंसर्स लिख रहे हो, कि आपको पॉइंट्स किस तरीके से जनरेट करने हैं। जनरेशन में एक तो जैसे मैंने बताया, या फिर आप सिलेबस पूरा याद करो, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, सिलेबस याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। मेजर्स में, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, मेजर्स में व्हाट यू नीड टू डू इज, मेजर्स में हमेशा सोचते समय, जैसे मैंने बताया
कि what are the legal measures government is taking, legal or policy measures, what are the institutional measures government is taking, what are the reforms, systemic reforms they are taking, and what are the international collaboration or international initiative. So any reform, if you are able to think in this format, आप क्या करोगे, इजीली पॉइंट जनरेट भी कर पाओगे एंड आपका स्ट्रक्चरिंग जो पॉइंट्स होंगे ज्यादा अच्छे तरीके से होंगे, द एग्जामिनर वुड आल्सो अंडरस्टैंड कि आपने सही फॉर्मेट में पढ़ाई की है। एनी मेजर्स इन GS3 वुड बी इन दिस फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में आते हैं मोस्ट। ठीक है, अगर आपको टाइम नहीं है तो यू कैन, आपको पता है डायरेक्टली, अगर पता भी है आपके पॉइंट्स भी, आप इस फॉर्मेट में आप इसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, मेजर्स, तो यूजुअली इंपॉर्टेंस इश्यूज एंड मेजर्स यूपीएससी गवर्नमेंट पूछता है। देन कम्स कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज व्हाट आई विल बी डूइंग इज I'll be sharing a Google Docs का link in next few days, where what we have tried to do is we have tried to give you certain fixed conclusions on topics of the syllabus, especially GS3 के लिए हमने सोचा है। So that what it would do is, अगर आप उतना भी आप याद करके जाओगे ना, आपका कंक्लूजन बहुत स्ट्रांग रहेगा, तो क्या होगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड रहेगा। अगर एक क्वेश्चन का कंक्लूजन बुरा है तो क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी नहीं पढ़ेगा। हाउ डू यू एंड द आंसर डिसाइड्स कि आपका नेक्स्ट आंसर वो पढ़ेगा नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन का कंक्लूजन वुड डिसाइड कितना इफेक्टिव है आपका कंक्लूजन। सो इस वजह से एंड कंक्लूजन्स आर मेजरली फिक्स्ड है, अगर क्योंकि वो मेजरली फ्यूचरिस्टिक है, इट इज ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, तो कंक्लूजन कैन बी, अगर आप एक टॉपिक पर 2-3 कंक्लूजन याद करोगे तो क्या होगा, या एटलीस्ट उसका स्ट्रक्चर याद करोगे, या आपको पता है की फ्रेजेस याद करोगे, मैं बताऊंगा किस तरीके से हम कवर करने वाले हैं, तो क्या होगा, यू कैन राइट द सेम कंक्लूजन, वो 2-3 में से आप हमेशा एक तो लिख ही पाओगे। And we are going to do that for you. Do you want it? Give me thumbs up अगर आपको चाहिए। Definitely do let me know in the comment section. अगर आपको चाहिए तो ही दूंगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मतलब so that is an extra thing we are doing for you guys. अगर आपको चाहिए तो मुझे बताना, लेकिन कंक्लूजन में हमेशा याद रखना, इट हैज टू बी फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन, मेजरली इट हैज टू बी फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन। अगर इसमें फ्रेजेस है तो बहुत इफेक्टिव हो जाता है कंक्लूजन। फ्रेजेस या कमिटी रिकमेंडेशंस या किसी आदमी के साथ कर सकते हो, जैसे हमने अगर हम आगे देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडी के बाद है, तो हम नीति आयोग का मेंबर है रमेश चंद, वी कैन यूज हिम। तो मेजरली अगर हम देखेंगे फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन चाहिए, मतलब इट शुड सॉल्व द प्रॉब्लम एंड इट शुड बी बैलेंस इन द सेंस। देखो ये जैसे मैंने बोला विकसित भारत हो गया, सबका साथ सबका प्रयास हो गया, ऑप्टिमिस्टिक फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन। अब बोलना बहुत आसान है, लेकिन इफ यू हैव प्रीफिक्स्ड conclusions which is optimistic also and has a phrase in it also, definitely works very well, तो अगर आप देखो आत्मनिर्भरता हो गया, डिजिटल एज हो गया, ठीक है, सो मेजरली एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स 2.0 हो गया, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया, डेमोग्राफिक डिविडेंड। सो दे कंक्लूजन में व्हाट यूजुअली इज बीइंग फॉलोड इज, एक तो है कि इट हैज टू बी फ्यूचरिस्टिक, इट हैज टू हैव फ्रेजेस या keywords, it can have a certain personality, famous personality. So आप रमेश चंद का बोल सकते हो, नीति आयोग member, as रमेश चंद नीति आयोग member has said that we have to move from price based subsidies to income based subsidies, or we have to move from price based subsidies to direct benefit transfer. So there you can use, according to Ashok Dalbai, according to Pucci Commission, according to second ARC, according to famous personality, if you can add famous personality to your answers. ठीक है, अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो जब भी इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन है, तो इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन में वर्ल्ड बैंक, अगर आपको जीडीपी ग्रोथ लिखना है तो डेफिनेटली आप वर्ल्ड बैंक का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको जीडीपी रिलेटेड कुछ भी लिखना है तो डेफिनेटली इंट्रोडक्शन कैन बी इकोनॉमी रिलेटेड टर्म्स के लिए, जब भी इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन है, एंड इफ इट इज फिटिंग, अगर आपको पता है कि इंडिया का इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग है, आपको बताना है, मतलब द क्वेश्चन वाज दो इंडिया इज ग्रोइंग एट अ वेरी गुड रेट, बट
अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो यहाँ वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो, वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट से स्टार्ट कर सकते हो। एंड जब भी कंक्लूजन लिखना है विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी के बारे में, तो आपको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड मतलब अचीव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अमृतकाल ग्रोथ अचीव करना पड़ेगा। अमृतकाल इज बेसिकली हमें, अगर हमें डेवलप नेशन बनना है बाय 2047 what we require is we require growth and along not just growth, हमें रिफॉर्म्स भी चाहिए एंड इससे ही हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ दो कीवर्ड हो गए, स्टीयरिंग नेशन टू अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी रिक्वायर्स अमृतकाल ग्रोथ स्प्रिंट, टर्निंग टुडेज रिफॉर्म्स इनटू टुमारोज प्रॉस्पेरिटी। तो ये हाउ डज दिस साइन, अगर ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, कंक्लूजन इज वन थिंग यू हैव टू ऐड। तो अगेन जब भी इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो आपको कुछ कीवर्ड्स दैट ग्रोथ रिफॉर्म्स इन आवर इकोनॉमी हैव हेल्प्ड अस, या जब भी इफेक्ट ऑफ एलपीजी का आप बोल सकते हो, व्हाट हैज बीन द इफेक्ट ऑफ एलपीजी, द इफेक्ट ऑफ एलपीजी हैव बीन in such a large extent that we have moved from fragile fry to top 5. So this is one key phrase which you can use. ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये दो की फ्रेज, अकॉर्डिंग टू IMF इंडिया इज द ब्राइटेस्ट स्पॉट इन ग्लोबल इकोनॉमी, ब्राइटेस्ट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोनॉमी। सो इफ यू स्टार्ट योर आंसर्स या एंड ये कंक्लूजन के लिए रख सकते हो इंट्रोडक्शन, यहाँ क्या है, फ्रेजेस यूज किए हमने, दिस कुड बी। अगर MSME की बात करें, MSME में एज आई टोल्ड यू इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से भी स्टार्ट कर सकते हो। MSME आर नोन एज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये हमने ऑलरेडी देखा है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, कंक्लूजन या कौन से फ्रेजेस यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम सपोर्ट टू मिनिमम एंटरप्राइज। सो दीज फ्रेजेस कैन बी यूज्ड इन कंक्लूजन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली यहां अगर हमें ट्रूली आत्मनिर्भर बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिजाइन इन इंडिया एंड सेल इन वर्ल्ड। तो ये एक इंपॉर्टेंट की फ्रेज है, जब भी आप MSME की बात कर रहे हो, डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट, सेल टू वर्ल्ड, सेल टू वर्ल्ड। तो ये की फ्रेज यूज कर सकते हैं, या डिजाइन इन इंडिया, मैन्युफैक्चर बाय MSMEs and sell the world, sell the world। ठीक है, MSMEs can truly reach their potential if we are able to convert them from floor factories to global stores. How does it MSMEs can reach its true potential when we are able to convert them from floor factories to global stores। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए यू कैन यूज डेटा पॉइंट्स, कि कितना डेटा पॉइंट्स है, विच हमारा इकोनॉमिक सर्वे में भी दिया है एंड स्टेटमेंट्स भी है। लेकिन ठीक है, तो यहाँ भी विकसित भारत, सो demographic yields dividends only if we are able to create skilled Amrit PD, Amrit PD। so this is a keyword, we cannot Amrit PD, या हम demographic disaster बोलते हैं या demographic dividend बोल रहे हैं, तो यहाँ majorly what you can use instead of demographic dividend is आप demographic dynamite, we have to convert our demography, our youth into demographic dynamite which can propel the growth of India, demographic dynamite या Amrit PD by skilling them, Amrit PD by skilling them। we have to focus on, मतलब एंड में if we are able to focus on skill development, we'll be able to achieve कौशल भारत and lead to कुशल भारत, demographic dividend to demographic dynamite। ठीक है, so this type of conclusions are necessary, this key phrase based conclusions are very attractive। inclusive growth की अगर बात करूं, ठीक है, already we have discussed few, ठीक है, inclusive growth reflects the core spirit of सबका साथ सबका विकास, मेरा कीवर्ड आ गया, ठीक है।
and not just faster growth but also broader participation. अगर मैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में, तो दिस डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन कुड बी देयर, कोड बेस्ड इंट्रोडक्शन ही हो सकता है, एंड कंक्लूजन में व्हाट आई कैन एंड इज व्हाट वी नीड इज लॉजिस्टिक सेक्टर विद स्पीड, स्केल एंड स्मार्टनेस, और what I can write is what kind of logistics sector we required is seamless logistic for seamless Bharat, or seamless logistic. One more important introduction conclusion, what seamless logistic that bridge Bharat and India. ठीक है, ठीक है. So what we are trying to do is what I'm trying to do is let's have such kind of conclusions with you. ठीक है, फ्रॉम प्राइस सपोर्ट टू इनकम सपोर्ट, प्राइस सपोर्ट टू इनकम सपोर्ट. यहां रमेश चंद has rightly highlighted correcting the distortion of both input and output pricing. Blanket subsidy नहीं चाहिए, what we require is income support, direct income support, right? So this is how you need to focus on your conclusion. What we are planning to do is we'll add a Google Docs to your courses where according to topics we'll have 1 or 2 introductions, conclusions and key phrases which you can use. ठीक है, चलेगा. I hope things are clear with this short session with respect to answer writing. ठीक है, give me thumbs up अगर आपको ये session पसंद आया, and if you want more such sessions. तो majorly what I want is आपका structuring सही चाहिए, points आने चाहिए, points supported with data, and conclusion introduction and conclusion बहुत ध्यान दो. जो मैं डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा स्लोली उसमें हम अपडेट करते जाएंगे, फ्रेजेस ऐड करते जाएंगे. विल एंश्योर कि आपके पास ऐसे फ्रेजेस रहेंगे कि आप लास्ट मिनट में रिवाइज करोगे. मतलब यू विल हैव पॉइंट्स, मतलब फ्रॉम फ्लोर फैक्ट्री टू global store. We have to convert our MSMEs from floor factories to global store. The example introduction is floor factories to global store. Inverted comma. Imagine the impact it would. Imagine the impact. What do you say? Impact it would have. Imagine the impact it would have. Imagine the impact it would have. We have to convert our demographic dividend into demographic dynamite. ठीक है? From Kaushal Bharat, India's demographic dividend has to, मतलब why demographic why skilling is important is because Kaushal Bharat would lead to Kushal Bharat. Kaushal Bharat would lead to Kushal Bharat. From roadblocks to road maps. Seamless logistic which would connect Bharat with India. ठीक है, ठीक है. हम जब सब्सिडीज की बात करें तो एम्बर बॉक्स सब्सिडीज टू ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज, रैशनलाइजिंग सब्सिडीज, नॉट रिड्यूसिंग सब्सिडीज. रैशनलाइजिंग नॉट रिड्यूसिंग. जब हम फूड प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, तो फूड प्रोसेसिंग में क्या लिख सकते हो? फ्रॉम फार्म टू फोर्क. ठीक है, फ्रॉम अन्नदाता टू अभिवर्धक. अभिवर्धक मतलब क्या? हु इज एडिंग, व्हाट डू यू से, हु इज एडिंग वैल्यू. अभिवर्धक. वी हैव टू कन्वर्ट फार्मर्स फ्रॉम अन्नदाता टू अभिवर्धक, who is adding value and transforming. So imagine someone who is writing just who is writing simple, but if you're writing conclusion, that food processing industry would ensure that Annadata is converted into Abhivardhak, or food processing industry would ensure processed foods lead to prosperous farmers. Processed food leads to prosperous farmers. Processed food leads to processed farmers. हम जब GS3 देखेंगे, हम जब नक्सलिज्म
देख रहे थे तो हमने क्या देखा, हमने देखा फ्रॉम ग्रोथ, हम रेड कॉरिडोर टू ग्रोथ कॉरिडोर्स, राइट? चलेगा? आई होप यू विल फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस, राइट? अगर आपको सेशन पसंद आया है डेफिनेटली टेलीग्राम पर मुझे बताइए, एंड वी इट वुड हेल्प अस, इट वुड मतलब it would what do you say motivate us to take future more sessions 8830115524 पर. And in next few days, do not message sir कब आ रहा है PDF, in next few days we'll be having a PDF Google Docs पर हम अपडेट करते रहेंगे, तो आपको कोर्सेस में मिलता रहेगा. चलेगा?